Let's talk about next question. Which of following situation can be attributed to sustained excessive groundwater pumping in a basin? Which of following situation can be attributed to sustained excessive groundwater pumping in basin? Drying up of a small lake and stream over a period in spite of normal rainfall, and deteriorations of groundwater quality in certain aquifers, land subsidence in basin, increase in seismic activity, and increased cost of groundwater extraction. तो इनमें से कौन सा होगा? विच सिचुएशन एट्रीब्यूट टू सस्टेन एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग इन? तो पहला भी ड्राइंग अप स्मॉल लेक एंड स्ट्रीम ओवर ए पीरियड ऑफ स्पाइट, पहला सही होगा. डिटोरिएशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन सर्टेन एक्वीफर्स, दूसरा भी सही होगा. लैंड सबसाइडेंस इन बेसिन्स, ये भी सही होगा. इंक्रीज इन सीस्मिक एक्टिविटी, बिल्कुल होगा. इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, बिल्कुल होगा. तो इसमें आएगा नहीं, ये नहीं होगा. वन 2 3 एंड 5, इसमें ये आएगा 1 2 3 5, फोर्थ नहीं होगा. नेक्स्ट चलते हैं, इसका समझते हैं इस चीज़ को. सम नेगेटिव Some negative effects of excessive groundwater depletion from a basin are: first आता है drying of wells, stream and lake. Excessive pumping results in the reduction in river level in balls, streams and lakes, and in extreme cases those can be dried up in spite of normal rainfall. This is because the water is being pumped out even before the groundwater can recharged by the rainfalls. Next आएगा deterioration of water quality. इसका मीन्स होता है in case aquifer in coastal areas under natural conditions the boundary between the fresh water and salt water tend to be relatively stable, but excessive pumping can causes salt water to migrate inland and upward, resulting in saltwater contamination and degradations of the water quality. Next आता है सी आता है increased groundwater extractions cost. As the water table lower, the water must be pumped from greater depth to reach the surface, which involve more energy. So it will increase the cost of extractions of the groundwater groundwater substantially. क्या लिख रखा है? increase groundwater extraction cost. As the water table lower, the water must be pumped from the greater depth to reach the surface, which involve more energy. So it will increase the cost of extractions of groundwater substantially. Next आता land subsidence. Is land subsidence occur when there is a loss of support below the ground, and the overuse of groundwater results in reduction in the compactness and shearing strength of soil, which leads to the land subsidence. Next आता है note. Seismic activity predominantly occur either due to tectonic activity under the earth core or due to volcanic eruptions. There is no relation between excessive groundwater depletion and seismic activities. नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2. तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को. द फ्लो इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी. द फ्लो इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप
takes place due to gravity. द फ्लो इन सीवर टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी. अच्छा, सीवर के अंदर तो ठीक है, ग्रेविटी से चलता है, और पंप के अंदर कैसे चलता होगा? हैं? तो ऑब्वियसली पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा, तो इसमें सही आएगा. स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू. नेक्स्ट समझते हैं. द फ्लो इन सीवर is example of open channel flow. The basic difference between flow in pipe and flow in open channel flow is the boundary condition and the free surface of liquid which given below the table. टेबल को समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं ओपन चैनल फ्लो, उसके बाद समझते हैं पाइप फ्लो. दोनों का कंपैरिजन दे रखा है. फ्लो ओपन चैनल के अंदर फ्लो आर कैरेक्टराइज्ड बाई ए फ्री सरफेस ओपन टू द एटमोसफेयर. और इसके अंदर पाइप फ्लो के अंदर फ्लो सरफेस हैज़ प्रेशर मोर देन एटमोस्फेरिक. ओपन चैनल की बात करें तो फ्लो ड्रिवन इज बाय द ग्रेविटी. यहाँ जो फ्लो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है. और इसमें जो फ्लो ड्राइविंग होता है वो किसके कारण होता है? प्रेशर की वजह से. किसके अंदर? पाइप के अंदर. नेक्स्ट चलते हैं ओपन चैनल फ्लो के अंदर कि फ्लो क्रॉस सेक्शन इज अननोन इन एडवांस बिकॉज द फ्लो डेप्थ इज अननोन. यहाँ पर पाइप के अंदर समझे तो फ्लो क्रॉस सेक्शन इज नॉन और फिक्स्ड होता है. ठीक है. ओपन चैनल की बात करते हैं तो ओपन चैनल में फ्लो डेप्थ डिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सोल्विंग बोथ कंटिन्यूटी एंड मोमेंटम इक्वेशन. बट पाइप फ्लो की बात करें तो वेलोसिटी डिड्यूस्ड फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन. इससे कंटिन्यूटी इक्वेशन से वेलोसिटी डिड्यूस होती है. ओपन चैनल की बात करें तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HCl इज कोइंसाइड विद द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लो. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है वो कोइंसाइड करती है टॉप सरफेस ऑफ फ्लो. किसके अंदर? ओपन चैनल फ्लो के अंदर. पाइप फ्लो के अंदर होती है HCl ऑलवेज अबव द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लो. जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है वो टॉप सरफेस फ्लो के अबव होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. बात करते हैं The best water from factory having pH is 10 contain KOH only. For the best water discharge is 800 meter per cube per day. The total quantity of KOH per day will be nearly होगी. तो ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है. तो यहाँ पर जो pH दे रखा है, pH दे रखा है 10 और जो POH दे रखा है तो वो कितना होगा इसका? POH 14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. और जो ये OH माइनस होगा वो होगा 10 की पावर माइनस POH. तो ये कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? POH 4 आ रहा है आपके पास में. तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 मोल्स. भाई क्या हो जाता है इसमें? लीटर. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? अज्यूमिंग करेंगे कंसनट्रेशंस ऑफ K+ और OH माइनस एंड KOH इन वाटर. ठीक है. तो क्या हो जाएगा इसमें? जैसे मोलिक्यूलर वेट ऑफ KOH का कितना है? मोलिकुलर वेट 40 + 16 + 1. तो टोटल कितना हो जाएगा? 57. और अपने पास ऑलरेडी कितना मोल्स हैं? 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 4. तो KOH निकालेंगे अपन. टोटल मोल ऑफ KOH इन 800 मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से. तो हो जाएगा अपने पास में 800 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4. कैलकुलेट करते हैं इसको तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ एक बचेगा, इससे ये हो जाएगा टोटल 80 मोल.
पर डे। ठीक है, अब टोटल वेट ऑफ KOH निकालेंगे इन वाटर के अंदर। टोटल इन वाटर, तो 80 इंटू ये से मल्टीप्लाई कर देंगे 57 से, तो 8 पंजो 40, 7 से 0 हो जाएगा, 0, 8, 8 7 56, 0, 8 7 56, 6 एंड 40। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास ग्राम पर डे। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये आ जाएगा 4.5 किलोग्राम पर डे। तो है कि कहीं 4.5 इसमें आंसर बना आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Dracolisis is transmitted by the drinking contaminant water and dracolisis can controlled by filtration of the drinking water। ठीक है, तो कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फिल्टर वाटर से तो कंट्रोल किया जा सकता है, बट ट्रीटमेंट ट्रांसमिट बाय द ड्रिंकिंग कंटामिनेंट ऑफ द वाटर, तो इसमें आएगा सेकेंड, क्योंकि स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं इसको। ड्राकन्सिलिसिस आल्सो कॉल्ड गुनिया वार्म डिजीज, जिसे GWD बोला जाता है, इज ए पैरासाइट इन्फेक्शंस बाय द गुनिया वर्म। ए पर्सन बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे ड्रिंक वाटर दैट कंटेन इन्फेक्टेड विद गुनिया वर्म लार्वेज। इसका प्रिवेंशन की बात करते हैं तो पहला आता है ड्रिंकिंग वाटर ओनली फ्रॉम द सोर्स फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। सेकेंड आता है फिल्टर ऑल ड्रिंकिंग वाटर टू रिमूव द गुनिया वर्म एंड द वाटर कैन बी फिल्टर्ड इन द फॉलोइंग वेज। पहला आता है रेगुलर कॉटन क्लॉथ फोल्डेड ओवर ए फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट आता है ए पोर्टेबल प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ कंटेनिंग इन ए नायलॉन फिल्टर। थर्ड आता है फिल्टर द वाटर थ्रू द सेरेमिक्स और सैंड फिल्टर्स। एंड थर्ड जो आता है प्रिवेंशन बॉयल द वाटर, इससे भी ये प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ऑन कोलाइड्स। ठीक है, फ्लोकुलेशन इज द प्रोसेस टू ग्रो द चैलेंजेज कोलाइड इनटू सेट लेवल फ्लॉक। क्या ये बात सही है? हाँ सही तो है। फ्लोकुलेशन इज द प्रोसेस टू ग्रो द changeless colloids into set level flocks। Coagulation is the process of charge neutralization on the colloids। पहला सही है, दूसरा भी सही है, पर ये एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, तो इसमें आएगा बी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट समझते हैं इस बात को अच्छे से। Coagulation is a destabilization of colloid by addition of chemical that neutralize the negative charges by rapid mixing। ठीक है, the chemical are known as coagulant, usually have higher balance cationic salt A plus Fe+3 etc। Coagulation is a chemical process। अब बात करते हैं टिपिकल कोगलेंट्स के बारे में। तो पहला आता है एल्यूमिनियम सल्फेट, जो Al2SO4 318H2 है, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। दूसरा जो कोगलेंट्स है वो है आयरन साल्ट और या फेरिक सल्फेट, जिसे Fe2SO4 3 बोला जाता है। उस तीसरे नंबर पर आते हैं आयरन साल्ट के अंदर फेरिक क्लोराइड। आयरन साल्ट दो तरीके के होते हैं, एक फेरिक सल्फेट और एक फेरिक क्लोराइड Fe2Cl3।
चौथा आता है पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड PaC, जिसे Al2OH3 एंड Cl2। फ्लोकुलेशन की बात करते हैं। फ्लोकुलेशन इज एग्लोमरेशन ऑफ द डिस्टेबलाइज्ड particle into large size particle known as floc by slow mixing which can effectively removed by sedimentation or flotation। नेक्स्ट बात करते हैं। समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट होते हैं, आयरन फेरिक सल्फेट होते हैं, आयरन साल्ट होते हैं। फ्लोकुलेशन इज द एग्लोमरेशन ऑफ द डिस्टेबलाइज्ड particle into large size particle known as by slow mixing which can be affect the removal by sedimentation or flotation। नेक्स्ट बात करते हैं। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी अचीव्ड। तो जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी अचीव्ड बाय द कौन सा मेथड होता है? आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस से आप जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर अचीव कर सकते हो। समझते हैं कैसे? इसमें आती है लाइम सोडा प्रोसेस। दो प्रोसेस के बारे में समझेंगे। लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है? केमिकल नॉर्मली यूज्ड आर लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH and soda S, sodium carbonate NO2CO3। Lime is used to remove chemical that cause carbonate hardness. Soda S used to remove chemical that cause non-carbonate hardness। ठीक है, तो जो सोडा एस यूज होती हैं वो रिमूव होती है केमिकल दैट इज कोज्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, कौन सी चीज़? सोडा एस। और जो लाइम यूज्ड होता है वो कौन सी केमिकल जो होता है कौन सी हार्डनेस को रिमूव होती है? कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो आप समझोगे इसमें कि जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है ये किससे रिमूव होती है? ये होती है सोडा एस से। और ये जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है ये रिमूव होती है किससे? लाइम से। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइम सोडा सॉफ्टनिंग कैन नॉट प्रोड्यूस्ड ए वाटर इट कम्प्लीटली फ्री ऑफ हार्डनेस। लाइम सोडा सॉफ्टनिंग कैन नॉट प्रोड्यूस ए वाटर इट कम्प्लीट फ्री ऑफ हार्डनेस बिकॉज ऑफ द solubility of CaCO3 and MgOH2। Thus the minimum calcium hardness can be achieved is about 30 milligram per liter as CaCO3 and thus magnesium hardness is about 10 milligram पर लीटर एज CaCO3। तो कितनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम? 30 और 10। नेक्स्ट बात करते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। तो आयन एक्सचेंज रेजिन, जिन्हें जियोलाइट भी बोला जाता है, एक्सचेंज वन आयन फ्रॉम द अदर बिंग ट्रीटेड और अनदर आयन दैट इज इन द रेजिन। सोडियम इज वन कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टनिंग साल्ट विथ क्लोरीन बिंग द अदर्स। ठीक है, सोडियम इज वन कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टनिंग साल्ट विथ क्लोरीन बिंग द अदर्स। Zeolite resin exchange the sodium of calcium and magnesium and it can produce water with zero hardness। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। What is the requirement of the plant size? What is the requirement plant size of a square sedimentation tank? Given that it is effective depth is 3 meter and flow rate is 40 mld with admissible surface loading of 1 lakh liter meter square per day and as the primary sedimentation tank in sewage treatment, what is the requirement of the plant size square sedimentation के लिए? ठीक है, तो देखते हैं कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है 40 mld, जिसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10 की पावर 6 लीटर पर डे। और जो सरफेस लोडिंग रेट है, सरफेस लोडिंग रेट वो कितनी दे रखी है इसने? वो दे रखी है 1 लाख लीटर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है,
अब सरफेस और प्लान एरिया ऑफ द बेसिन की बात करें, सरफेस ऑफ प्लान एरिया ऑफ द बेसिन, तो क्या होता है, ये होता है डिस्चार्ज अपॉन सरफेस लोडिंग। तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 1 लाख। ठीक है, तो इसको काट पीट देंगे, ये कितनी है 6, ये कितनी है 5, तो ये उड़ जाएगा यहाँ से और ये बच जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे एज द सेडिमेंटेशन टैंक इज स्क्वायर इन शेप, जैसे स्क्वायर इन शेप, सो प्लान डायमेंशन इज अंडर रूट, स्क्वायर में बात कर रहा है ना, तो इसको अंडर रूट में डाल दो, ये हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 400 का तो 20 आएगा, तो और ये स्क्वायर हो गया, तो एक लेंथ निकल के आ गई इसकी 40, तो सॉरी 20, तो ये हो जाएगा 20 × 20। आंसर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय द, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय द रीयूज, रिकमलेशन एंड रिसाइकलिंग। रीयूज, रिक्लेमेशन एंड रिसाइकलिंग, ये सबको पता है, सिंपल सी चीज़ है। एक बार फिर भी इसको एक्सप्लेनेशन समझ कर लेते हैं बेस्ट यूटिलाइजेशन का। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज stinging and widespread problem in both urban and rural area in many developed and developing countries. Municipal solid waste collection and disposal is one of the major problem of the urban environment in most countries worldwide today. Municipal solid waste management solution must be financial sustainable, technical feasible, socially, legally and acceptable, and environmentally friendly. Solid waste management issues the biggest challenge to the authorities of both small and large cities. Best utilization is achieved by the reuse, reclamation and recycling of the best material. नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बाद ऑफ रिवर के बारे में बात करते हैं। तो द बीओडी रेट कांस्टेंट वेरीज विद रिवर वाटर टेम्परेचर। बीओडी रेट कांस्टेंट वेरीज विथ रिवर वाटर टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल सही बात है, बीओडी रेट कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वेरीज विद रिवर वाटर टेम्परेचर। द बीओडी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द बीओडी ऑफ रिवर वाटर। बीओडी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन बीओडी ऑफ द रिवर वाटर। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। द बीओडी रेट कांस्टेंट इज ऑफ्टन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट रिवर वाटर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिवर वाटर। जो बीओडी रेट कांस्टेंट होता है ना, वो डिफरेंट होता है किसके लिए, डिफरेंट रिवर वाटर के लिए। तो ये भी सही बात है। द बीओडी रेट कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी। बीओडी रेट कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी, तो ये भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 3। चलो पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझते हैं। Biological oxygen demand. It can be defined as the amount of oxygen required by aerobic organism
to break down organic material present in given sample of water at a certain temperature over a specific time period। ये बिल्कुल समझ में आ गई, प्राइमरी डेफिनेशन है। बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। द BOD वैल्यूज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम, बहुत ठीक है। ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ द सैंपल ड्यूरिंग 5 days, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इंक्यूबेशन एज 20 डिग्री मिलीग्राम पर लीटर एंड ऑफ्टन यूज्ड एज ए सॉरुगेटेड ऑफ द डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ये बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं डाइल्यूशन मेथड के बारे में। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ओरिजिनली प्रेजेंट इन अनडाइल्यूटेड सैंपल ऑफ सीवेज एंड द dissolved oxygen present in a diluted sample of the sewage after is subjected to incubation at a constant temperature of 20 degree for a period of 5 days, ठीक है। दिस मेथड बेस्ड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ dissolved oxygen originally present in undiluted sample of sewage and the dissolved oxygen present in dilution sample of sewage after it's subjected to incubated at constant temperature of 20 degree of period of 5 days, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द डाइल्यूशन वाटर may be prepared by adding 1 milligram each of phosphate buffer solution, magnesium sulfate solution, calcium chloride solution and ferric क्लोराइड सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। मतलब कौन कौन से इसने केमिकल्स के नाम लिए थे। सबसे पहला आता है ईच 1 ml ऑफ फास्फेट बफर सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। कौन कौन से हो गए, मैग्नीशियम, ठीक है, फास्फेट और कैल्शियम, इस तीनों का सॉल्यूशन होता है। द फास्फेट बफर इज एडेड टू मेंटेन pH वैल्यू बिटवीन 7 से लेके 7.6। जो फास्फेट बफर इज एडेड किया जाता है ना, वो मेंटेन किया जाता है pH वो कितनी वैल्यू के अंदर, 7 से 7.6 के बीच, विच इज़ द ऑप्टिमम pH वैल्यू फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड अदर साल्ट्स आर एडेड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। फॉर BOD टेस्ट 300 ml ऑफ साइज ऑफ बॉटल्स आर यूज्ड। मैथमेटिकली इसको समझे तो BOD ऑफ 5 days ये डिप्लीशंस ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इनटू द डाइल्यूशन फैक्टर। ये जो है इनिशियल ऑक्सीजन होती हैं, ये फाइनल ऑक्सीजन होती हैं, ये इसका फैक्टर होता है फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, डाइल्यूशन फैक्टर प्योर वाटर वॉल्यूम प्लस सीवेज वॉल्यूम, है ना। प्योर वाटर वॉल्यूम अपॉन सीवेज वॉल्यूम डिवाइड बाई सीवेज वॉल्यूम। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। BOD के डाइल्यूशन मेथड पढ़ लिए, ये डायरेक्ट मेथड है। ये डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, L0 1 माइनस ई की पावर माइनस KT या L0 1 माइनस 10 की पावर माइनस KDT। जो L0 होता है ये ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनिशियली मिलीग्राम पर लीटर में होता है। जो L0 होता है ना, ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। KD एंड K जो होता है ये डीऑक्सीजनरेशन कांस्टेंट होता है एट द बेस ऑफ 10 ये और E के ऊपर। डे इनवर्स में होता है ये 20 डिग्री पे होता है। T जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं BOD रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर T डिग्री इज ए गिवन। BOD इस टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है K 20 डिग्री इंटू 1.047 T-20। देर आर सेवरल अदर मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग K एंड L0, मतलब ऑक्सीजन इक्विवेलेंट and deoxygenation constant at the base from the series of BOD measurement which include methods of least square, methods of movement, daily difference method, rapid ratio method and Thomas method। ये और methods हैं जो यहाँ पे यूज़ भी होते हैं। अब समझते हैं मेन पॉइंट को। एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फ्रॉम अबव डिस्कशन अबाउट BOD, इट इज़ क्लियर दैट
depends on the temperature of the river water as it given by the this formula kdt is equals to kd20 कोष्टक 1.047 की पावर t माइनस 20। दूसरा जो रहता है दूसरा BOD रेट कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ वाटर। BOD रेट कांस्टेंट वैल्यू ये डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ वाटर के ऊपर। तो वाटर टाइप की बात करते हैं, ये वाटर टाइप हो गए और ये इसकी वैल्यूज़ हो गई। टैप वाटर जो होता है उसके लिए KD की वैल्यू लेस देन 0.005 होती है। सरफेस जो वाटर होता है उसके लिए KD की वैल्यू 0.05 से लेके 0.1 होती है। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर के लिए होती है 0.1 से लेके 0.15 एंड ट्रीटेड वाटर एफ्लुएंट के लिए जो होती है 0.05 से लेके 0.1 होती हैं एंड इट कैन बी डिटरमाइंड इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक ये वीडियो को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए।